We'll wait for 1 minute, one more minute, and we start. All right. Remember last class में 4-bit parallel adder हमने discuss किया था, and then I have also discussed these 3 types of code: BCD code, gray code, XS3 code. Right? यहाँ तक clear है सबको? Sir. Yes. Sir. Sorry to interrupt, but students are waiting in lobby. हाँ, ऐड कर दिया मैंने उसको. अब कोई है ही नहीं लॉबी में. Sir, 2-3 students message me. अभी कर दिया है शायद सिर्फ. I Okay, don't sir. see anyone waiting in the lobby. No, there is no one. All right, so बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड बिफोर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस 4-bit पैरेलल एडर, राइट? हाउ टू add 4-bit parallel number. We need 4 full adder, and when see waiting room. Okay. ओके, 5 मिनट हो गए ना लेक्चर पूरे हुए? हाँ सर, 5 के ऊपर हो गया. चलो, तो लेट मी लॉग द मीटिंग नाउ. ओके. ऑलराइट, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में देखो, इफ यू हैव सच मेंटालिटी कि भाई बाइनरी मतलब 0 और 1 वाली लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 से बाइनरी नंबर बाइनरी कोड बनता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड आल्सो यू कैन पीपल हैव, आई मीन पीपल यूज इट यूजिंग 0 and 1. One of them is binary coded decimal, second is XS3, and the third one is gray code. तो बाइनरी कोडेड डेसिमल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. 0 to 9 है उसमें, and how to represent different number in binary coded decimal, that is I have already discussed. XS3 कोड में डिफरेंस क्या होता है? It start from 3 not from 0, and ग्रे कोड में बीच के नंबर ऊपर नीचे होते हैं, राइट? सो यू सी दैट 0 1 के बाद 11 आता है, and then 10, then 1 1 0 1 1 1, then 1 0 1 1 1 1 0 0. Okay, so this is how it, these all codes are different from each other. These all are the combination of 0 and 1 only, but there is a minor difference, and based on that they are used in different applications. Okay. अब डेसिमल कोड के बारे में सबको आइडिया आ गया क्या डिफरेंस है, बाइनरी से कैसे अलग पड़ता है? किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो. No, sir. So for an example, let me just quickly revise you. If you want to write a number कि 0 से 9 ही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या है, आप 0 से 9 सिंगल बीट ऑफ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 और 1 को यूज करके. ठीक है? तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन 9? द सिंपल ट्रिक इज, if you want to see this example, see my arrow, if you want to represent 365, okay, record हो रहा है कि नहीं हो रहा?
सर ये बताया हुआ है आपने। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, पर जस्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। 365 जस्ट राइट 3 इक्विवेलेंट, 00116 equivalent and 5 equivalent, but you write the same in binary, this is different, right? Now comes the addition part. अब जब बाइनरी सम विच इज लेस देन 9 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 0 to 9 तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 5 + 4 करो प्रॉब्लम नहीं है, 3 + 2 करो प्रॉब्लम नहीं, बट व्हेन यू डू 7 + 8 विच इज मोर देन 9 देन देयर इज अ ट्रिक, क्योंकि एडिशन तो आप बाइनरी करते हो, 0 + 0 करते हो, 0 + 1 करते हो, तो आंसर बदल जाएगा, है ना? So for that we need to add a correction. If the binary sum is equal or more than 1010, that is more than 9, then must add 6, that is 0110, to the corresponding sum digit in order to produce the correct carry into the digit to the left. मतलब जब भी हम कोई सम करते हैं BCD में, तो अगर उसका सम 9 से ज्यादा है तो उसके आगे के जो भी कोड है वो तो इनवैलिड है BCD में. So we need to correct it, and in order to correct it we need to add 6 after addition of binary numbers, right? So here is the difference. See 9 तक क्या है, सेम ही है. बाइनरी एंड BCD कोड को आप अगर कंपेयर करोगे तो 9 तक इट्स सेम, 0000 1001 1001. और व्हेन यू चेक द 10 इसमें क्या है, 0000 1010, and this is different, 0001 0000. So when you do 9 + 1, तो एडिशन तो बाइनरी करोगे तो आंसर 10 तो ऐसा आएगा, बट वी वांट 0001 एंड 0000. फॉर दैट वी नीड टू ऐड करेक्शन पार्ट. समझ आ गया? हम 6 ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज how many numbers you can make using these 4 bit 16, right? And for up to what you can go 9, right? So what is the difference between 15 and 9? +6. 6, right? Usually हम लोग 15 तक जाते हैं, but we cannot go beyond 9, so we need to add a correction factor, that is 6, because the max limit is 15 and our limit is 9 for the BCD. The difference between them is 6, so we need to add 6 after addition of 9. For an example, if I ask you कि अगर 45 minutes plus 35 minute करना है आपको, समझ रहे हो, तो कितने मिनट होगी? 80 minute, right? And if I ask you to write the same in hours and minute, how will you write it? 80 minutes, 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes, right? अब the correction factor usually हम लोग क्या है, 100 को कैरी मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो what we need to do is, actually जब हम मिनट कैलकुलेट करते हैं तो 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर होता है ना? 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है. तो 100 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 का. हेलो, Yes, sir. राइट? तो जब भी हम Yes, sir. मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं तो व्हाट वी नीड टू इज वी नीड टू ऐड 40 इन द मिनट्स. फॉर एन एग्जांपल, आपको पता है कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है. अब मैंने आपको बोला कि 45 मिनट प्लस 35 मिनट करो तो 80 मिनट आ गए. बट फ्रॉम मिनट टू इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू आवर्स, इफ यू ऐड 40 into 80, आपकी 80 मिनट आई है, 80 में आप 40 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 hours 120 minutes. 120 मिनट्स. अब 120 में से आप पीछे के 2 कॉलम निकालोगे क्योंकि वो 100 का डिफरेंस है ना, तो 1 hour 20 मिनट्स हो जाएगी. समझ रहे हो? सो एवरी टाइम यू नीड टू इट करेक्शन फैक्टर 40. सपोज आई आस्क यू कि 50 + 40 कितना होता है? 90, which is nothing but 60 मिनट प्लस 30 मिनट्स. तो मतलब वो 1 घंटा 30 मिनट हुई, 1 hour 30 मिनट्स. Yes, sir. बट इफ यू डायरेक्टली वांट टू राइट डाउन, आप 90 में 40 ऐड करो करेक्शन फैक्टर, तो 90 + 40 कितना होगा? 130. 130, and it is the factor of 100. So पीछे से 2 पॉइंट निकालो, 1 hour 30 मिनट्स हो गया. Yes, sir. So what I am trying to convey here is कि आपको जब मिनट को कन्वर्ट करो आवर्स में, क्योंकि यूजुअली हम एक के बाद 99 जाते हैं, 99 के बाद 100 जाता है, लेकिन इसमें क्या आता है 59 के 60 होने ही 1 हो जाता है, 1 आवर हो जाता है.
So there is a difference between 60 and 1, that is the correction factor 40. So if you want to directly convert our minutes to hour, we need to add 40 after each addition. ठीक है, तो similarly we'll need to add 6 here also. 6 is equivalent to 0110. Okay, now see this. सर इससे पहले सर वो कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो लोग चाहते हैं कि आप मीटिंग अनलॉक करें. Okay. सर मतलब जैसे डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं वैसे ही कर रहे हैं ना इधर. हाँ हाँ ठीक है. अब देखो अब यहाँ पे ये बीसीडी एडिशन का एग्जांपल देखते हैं. हमें ऐड करना है 1000 बाइनरी कोड, हाँ बीसीडी कोड सॉरी बाइनरी कोडेड डेसिमल, प्लस हमें ऐड करना है 0100. तो चलो हम एडिशन कर लेते हैं. हमें ऐड करना है 1000 और हमें क्या ऐड करना है 0100. तो 0 + 0 किया 0 आया, 0 + 0 किया 0 आया, 0 + 1 किया 1 आया, 1 + 0 किया 1 आया. समझ आ गया ये? हाँ सर. अब ये जो 100 है वो इक्विवेलेंट टू 8 है बीसीडी, और ये 0100 है वो इक्विवेलेंट टू क्या है 4. 8 + 4 क्या होता है 12. 9 के बाहर गया. 12. ठीक है, अब 12 को बाइनरी में 1100 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन बीसीडी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 का इक्विवेलेंट लिखते हैं 0001 और 2 का इक्विवेलेंट लिखते हैं 0010. समझ आया? हाँ. तो ये आंसर तो गलत हुआ ना, 8 + 4 12 नहीं हो रहा. ये हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए था एडिशन के बाद 00010010, but what we got here is 1100. So that is the reason we need to add a correction factor. इसमें 6 ऐड करेंगे. 6 मतलब क्या होता है 0110. अब ये जो एडिशन आया उसमें हम जब 6 ऐड करेंगे तो what you will get is 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 10, that is 0 and carry 1, and 1 + 1 10. अब 0 रह गया, 1 एक्स्ट्रा कैरी रह गया, तो ये पहली 4 डिजिट बन जाएगी हमारी 0010, और एक्स्ट्रा डिजिट जो एक बच गई टुवर्ड्स योर एक्सट्रीम लेफ्ट मैक्सिमम सिग्निफिकेंट नंबर एमएसबी, राइट, वो हो गया 1. उसके आगे हमें 3 0 लगाने पड़ेंगे. हम लोग क्योंकि 4 बीट कंसीडर कर रहे हैं सिंगल बीट को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 00010010, which is equal to BCD 12 only. और ये 10 वाला नहीं समझा. एक सेकेंड है, मैं ऐड कर लेता हूँ. देखो यहाँ पे कैरी ऊपर 1 गई है, ठीक है. 1 + 1 कितना होता है 0. 10 10 10 10 10 क्या बोल रहा हूँ 10 10 10. राइट. 10 अब यहाँ इसके आगे कोई नंबर है कि कैरी आगे जाएगी, नहीं. तो वो 10 ही लिखेंगे सीधा नीचे. हाँ. अब ये टोटल 5 डिजिट हुई. हाँ. ठीक है, अब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं 4 4 में करते हैं, और ग्रुपिंग कहाँ से राइट टू लेफ्ट करते हैं. सबसे पहला ग्रुपिंग किसका होगा 0100 का. वो हो गया, ये रहा मेरा एरो देखो. ओ एक ही डिजिट बच गया, उसके पहले 3 लगा दिए. हाँ, क्योंकि हम लोग जब एडिशन करें तो 4 के इक्विवेलेंट लेके एडिशन कर रहे हैं ना. हाँ 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 सर समझ गया. Now check it. This is 0001 is 1 and 0010 is 2. This is nothing but your 12. तो आप कोई भी एडिशन करोगे उसमें जब 6 ऐड करोगे तो you will get the correct answer only. So this is how binary coded decimal addition is different than binary addition. Binary में अगर 8 + 4 करो तो 12 1100 ही होता है. अगर 10 + 12 करना है मुझे तो उसमें पहले 110 ऐड करूंगा या फिर पहले दोनों को ऐड करूंगा फिर 0110 ऐड करूंगा. बाद में ही करना है करेक्शन फैक्टर आफ्टर योर एडिशन. अच्छा नहीं सर, क्योंकि 10 भी बाहर हो गया ना फिर 9 के. तो
हाँ कोई बात नहीं, you can go up to n number, but this is the correction factor you need to add, right? वो last Okay. में ऐड होगा। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने हाफ हेडर का आपको सर्किट बताया, फुल हेडर का बताया, अब मुझे बीसीडी एडिशन का भी एक बनाना है कि भाई मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है जो बीसीडी नंबर को एडिट करे, अरे सॉरी एडिशन करे बीसीडी नंबर का। आगे सब लोग जो वेटिंग में थे, हाँ सर आज जाना चाहिए। 23 का था 44। हाँ सर आ गए। ऑलराइट, तो अब मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। ट्रूथ टेबल मैंने बनाया कि क्या क्या कि मैंने 4 नंबर ले लिए, ठीक है, S1 S2 S3 S4, मतलब 0 1 2 3 अब टिल 9 मुझे एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दीज ऑल आर वैलिड कोड, राइट? बट द मोमेंट इट गोज आउट ऑफ 9 आई नीड टू एड अ करेक्शन फैक्टर, राइट? सो देखो 1001 क्या है 9, तो वहां तक मैंने क्या लिख दिया 00000, राइट? मुझे मेरी सर्किट ट्रिगर करनी है, मतलब मुझे एडिशन 6 का करना है, कब करना है? व्हेन इट गोज बियॉन्ड 9। सो 9 के बाद सारे को मैंने 1 1 1 1 1 1 लिख दिया, समझ आया? मतलब एक कैरी होगा। सबको समझ आ हेलो रहा है? मैं सबको पूछ रहा हूँ। No, सर sir. मतलब अच्छा, कितनों को ये एडिशन का फंडा समझ में नहीं है अभी तक? इज देयर सर एनी एडिशन वन? में कुछ यहाँ पे 1 क्यों लिखा वो थोड़ा नहीं वो बता रहा हूँ मैं। कैरी। ऑल दीज 54 स्टूडेंट्स, any problem in addition of 8 plus 4? मतलब एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कोई भी नंबर को ऐड करो, 6 ऐड कर दोगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो मैं ये ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन करूं। ऑल क्लियर? देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सर्किट बनानी है एडिशन की, ठीक है, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर को सम करे। यहां तक समझ में आया? मुझे क्या करना है कि भैया एडिशन जो करना है वो एडिशन में 9 तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 9 तक वो नॉर्मली एडिशन करता रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन यू एक्सीड द नंबर 9 मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा। उतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा है। 9 तक मैंने y जो मेरा लिया है वो 0 लिखा है, इसलिए 0 लिखा है बिकॉज आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर ये सिंपल एडिशन जैसे बाइनरी एडिशन भी करता रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग फ्रॉम माय एंड, y इज समथिंग वी आर गोइंग टू ऐड फ्रॉम आवर एंड। कुछ अलग करना पड़ेगा ना, 6 ऐड करना पड़ेगा। till 9 I don't need to do anything, so I don't need to give any input from my end, so y is 0. But the moment it goes beyond 9, that is greater than 9, I need to do something from my end, from user end, that is add 6. So for beyond 9 what I write is 1 1 1 1 1 till 15, okay? बिकॉज 9 के बाद अगर नंबर ग्रेटर देन हो रहा है तो मुझे वो एडिशन में 6 ऐड करना पड़ेगा, और 6 ऐड करने के लिए ट्रिगर करना पड़ेगा मुझे सर्किट, वो बाद में आएगी इसके बाद। लेकिन ये 1 1 इसीलिए लिखा क्योंकि 0 से 9 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, करता रहे बाय हाफ हेडर जो है वो भी करेगा, फुल हेडर करता रहेगा। समझ रहे हो ना? मतलब सर ऐसे ही लिख दिया? क्या ऐसे ही लिख दिया? मतलब वो उसके आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते 6 ऐड हो रहा है इसलिए जस्ट रिमाइंड करने के लिए कि 6 ऐड हो रहा है इसलिए लिख दिया? नहीं, अब देखो अभी मैंने क्या किया, इसीलिए आप लोग 0 और 1 का मतलब समझो। 1 मतलब कोई चीज प्रेजेंट है, 0 मतलब कोई चीज एब्सेंट है, मतलब डिपेंड्स। एसओपी फॉर्म लोग पीओ हम लोग यूजुअली एसओपी की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मैंने 1 लिखा है, मुझे क्या करना है कि भाई ये मेरा नंबर एडिशन में आया, ये नंबर मेरा एडिशन में आया। अब 9 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 0 इनपुट में दूंगा, 0 मतलब कुछ करना ही नहीं है। मैंने 1 1 लिखा। अब मैंने क्या किया, के मैप बनाया S4 S3 S2 S1, जहां पे भी 1 1 है
वो मैंने 1 1 लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 1 है, राइट। तो 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ सेल में मैंने लिख दिया। फिर मैंने ग्रुपिंग किया, 2 का ग्रुपिंग हो जाएगा। हाँ, मुझे ये वाला इक्वेशन मिला S4 S3 प्लस S4 S2। करके देख लो, वही इक्वेशन मिलेगा। हाँ वही है। ओके, S4 नीचे आया। अब इससे मुझे क्या पता मिलता है, पता है नहीं, कि जब भी मेरा एडिशन 9 के ऊपर जाता है, जब भी मेरे नंबर 9 के ऊपर है, मुझे नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट के साथ S3 मतलब जो थर्ड सिग्निफिकेंट बीट है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, और S4 और S2 का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट दैट इज S4 एंड सेकंड सिग्निफिकेंट बीट को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का एडिशन करना है। दिस विल बी माय इक्वेशन, दिस इज द थिंग आई हैव टू डू इट फ्रॉम माय एंड। This is nothing but the representation of 10, 11, 12, 13, 14 and 15. ये जो हाँ वो नंबर तो है है। वो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है। दिस इज द सर्किट, ठीक है। सबसे पहले कैरी अगर आगे की है तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं है तो हम नहीं करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने 4 बिट एडर रखा है, मतलब जो दो नंबर को ऐड करता है, ठीक है। वो दो नंबर को ऐड किया, फिर यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है 0 1 1 0 0 1 1 1। अब इसका एडिशन करोगे, 0 + 1 करो, 1 + 1 करो, 1 + 1 करो, जो आता है, ठीक है। नंबर हमारा आ गया 1100। अब मैंने ये जो S4 S3 है ना, S4 S3 S4 S2, यहाँ पे मैंने गलती से S1 S2 S3 S4 ले लिया है। S0 S1 S2 S3 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने गलती से यहाँ पे S1 S2 S3 S4 लिख दिया है, तो जस्ट चेंज इट। ये 4 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, S3 और S2 को एंड करना है। ये मेरा S3, ये मेरा S2, ये एंड कर दिया। फिर मुझे S3 और S1 को एंड कर दिया और उन दोनों का सम कर दिया, और कर दिया, राइट। और करके अब ये जब 1 होगा, ये इक्वेशन मतलब S4 S3 S2 का एंड और S3 S1 का एंड, उन दोनों का और जब 1 होगा, इट मींस अ नंबर इज मोर देन 9, क्योंकि मैंने कहां कहां पे 1 लिखा है, जहां जहां पे भी नंबर 9 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि अगर ये एडिशन, इसको पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे 6 ऐड करना है। ये क्या करेगा, एडिशन आने के बाद ये चारों बीट को देखेगा कि भैया ये अगर 1 हो रहा है, इट मींस कि भैया ये नंबर ज्यादा है, 9 से ज्यादा हो रहा है, तो वील नीड टू ऐड 6। अब 6 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये एडिशन आ गया, ये 8 + 4 का नॉर्मल एडिशन जो है वो आ गया, ठीक है, मतलब वो जो नॉर्मल एडिशन आगे का था। अब उसमें मुझे 6 ऐड करना है, राइट। तो आप देखोगे कि ये अगर 1 है, टोटल 4 बीट का नंबर है, 4 बीट में से मैंने 0th नंबर ऑफ बीट और 3rd नंबर ऑफ बीट को फिक्स करके रखा है 0 0, ठीक है। अगर ये 1 आएगा तो ये दोनों 1 1 जाएगा, अगर ये 0 आएगा तो ये दोनों 0 0 जाएगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट 0 1 1 0 क्या है, कौन सा नंबर है, 6। 0 1 1 0 इज नथिंग बट 6, और 0 0 0 0 क्या होगा, 0। अच्छा, Yes, और sir. इनपुट हो गया फिर लास्ट में। ओके, अभी देखो, अभी मैं वापस से समझाता हूँ, ठीक है। सर इधर ये एक डाउट है सर्किट में। अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो ये जो S3 S2 एंड, सुनना ध्यान से, S3 S2 का एंड, ठीक है। S
S3 S1 का एंड और उन दोनों के आउटपुट का और, ठीक है, समझ लो बात को। सर एक सेकंड, वो 3 ठीक है, हाँ सर, ओके सर, समझ गया। हाँ ये हेलो, हाँ, ये आउटपुट 1 तभी होगा जब जब वो हमारा नंबर 9 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ट्रूथ टेबल में मैंने ये देखो वही 1 कंसीडर किए हैं which are greater than 9, and for that 9। this equation is valid. So in this circuit this will trigger 1 only when this is greater than 9, and if it is greater than 9 I need to add 6. How will I add 6? मैंने क्या कर दिया, हम लोग 4 बीट का एडिशन कर रहे हैं, मुझे 6 का मतलब पता है कि मुझे 0110 ही ऐड करना है, राइट? तो मैंने पहली बीट और लास्ट बीट, थर्ड बीट को 00 फिक्स रखा है, ये कोई भी केस में चेंज नहीं होगी, चेंज होगी सिर्फ मिडल की 2। अगर ये 1 है तो दोनों 1 1 जाएगी, अगर ये 0 आता है मींस इफ इट इज लेस देन 9 तो ये 0 0 आ गई, तो कोई एडिशन करेगा नहीं, क्योंकि एनीथिंग प्लस 0 इज द सेम थिंग। And if it is greater than 9 your answer should also add extra 6, तो ये 6 ऐड हो जाएगा और finally you will get the correct answer. सर Yes. ये जो है ना, ये सर मैंने मार्क किया, इसका मीनिंग क्या है? ये पहला एडिशन आया इन दोनों का, जैसे कि हाँ सर, वो 110 वो आ गया 110। हाँ, अब मुझे देखो देखो यही एडिशन 8 + 4 है, 1000 + 0110, ये अलग है। हाँ थोड़ा अच्छा, ये नंबर अलग है, मैंने 8 + 4 नहीं लिया है, कोई अलग नंबर है, मैंने इंटरनेट से लिया है क्योंकि ये मुझे बनाना इतना टाइम नहीं था पेंट में बनाने का, राइट? तो ये क्या है, देखो आपने 6 + 7, ये क्या है नंबर 6 + 7, 6 ये + 6 है, 7, राइट वाला 6 है। हाँ ओके, 6 + 7 इज 13, राइट? सो दिस इज योर 13। देखो 8 + 4 + 1 ये 13 हो गया, बाइनरी 13 है, हाँ राइट? इट मींस आप यहाँ पे पहुंचे हो, ये एडिशन में यहाँ पे पहुंचे हो। अब उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा 6 ऐड करने पड़ेंगे ये वाले, हाँ जी, हाँ। तो ये इसमें ये 1101 + 6 ये 0110 क्या है? अच्छा, एक और एडर है, ओके 6 है। हाँ, क्योंकि ऐड 6 करना है ना। हाँ हाँ हाँ, सो अच्छा एक और एडर है, ओके। हाँ सो दिस इज 1 नंबर, मेरा एरो देखो, हाँ, दिस इज सेकंड नंबर, these 2 number वैसे if you add it you get the answer. Now this answer if it is greater than 9 you have to do another addition, answer plus 6, right? So this is your answer of first addition. Now you know कि भाई ये तो 6 से ज्यादा है, sorry 9 से ज्यादा है, now I'll need to add more 6, so this is 0110 which is again 6, so answer plus 6 you get your final answer. This is carry 1, इसके आगे 3 0 और लगाओगे आप, सो इसके आगे 3 0 लगाओ तो 0001 क्या होता है बीसीडी में? 1 और 0011 क्या होता है? 3, सो 13 आंसर आ गया ना। हाँ तो यहाँ पे तो एडिशन क्या आप खुद से कर रहे हो ना, कि अच्छा चलो हाँ हैंड से बोल रहा हूँ नोट पेन में करो, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सर्किट है उसमें उसको खुद से पता करना होता है कि भैया अच्छा ये तो एडिशन ये आ गया, मुझे 6 ऐड करना है। सो दिस इज द लॉजिक, दिस 2 एंड प्लस, और अगर आगे की बीट का कैरी आ रहा है, राइट? सो दिस इज द लॉजिक कि भाई ये खुद से आइडेंटिफाई करता है, सर्किट को हम थोड़ी ना बताएंगे खुद से कि चलो भैया ये तो आ गया है ये 9 से ज्यादा, अब तो और 6 ऐड कर दे। दिस थिंग शुड बी डन ऑटोमेटिकली, एंड दिस इज द रीजन कि अगर आप ये मतलब पूरा सर्किट है, समझ रहे हो, 4 बिट बीसीडी एडर का ये सर्किट है, आप कोई भी नंबर डालो इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर ओनली, यू डोंट नीड टू गिव एनी इनपुट फ्रॉम योर एंड, एक्स्ट्रा इनपुट फ्रॉम योर एंड टू टेल दिस एडर कि भाई ये 9 से ज्यादा है तो तू 6 ऐड कर देना, नहीं वो खुद से कर लेगा। कैसे करेगा? what we did is we use this truth table,
how did we write 0 and 1? Because I know I need to do something only in my circuit. If my number is greater than 9, so all the possibilities which is greater than 9, I need to do something. What I need to do is S4 S3 plus S4 S2. Sorry, मतलब S3 S2 plus S3 S1. एक एक नंबर कम कर देना, because यहाँ पे 0 1 2 3 होगा. Usually यहाँ पे भी 0 1 2 3 कर देना, because in any यहाँ पे हम लोग 0 से ही सारे चीज का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं करते हैं. So don't get confused. So this is how actually it does this binary addition. मतलब ये अगर 0 आता है ना, तो सारे केस 9 के ऊपर वाले ही होंगे. देखो ये सारे वाले. अब उस केस में आंसर प्लस अगर ये 0 आता है, ये वाला एरो देख रहे हो ना, तो ये दोनों एक ही इनपुट में जा रहे हैं. तो 0 0 0 0. अब आंसर प्लस 0 करोगे तो आंसर ही आएगा. तो क्यों करेंगे? क्योंकि 9 से कम है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. चेंज वो तभी करेगा जब ये 1 है. ये 1 तभी होगा जब नंबर 9 से ज्यादा है, और 9 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? 6 0 1 1 0. सो वी विल गेट द करेक्ट आंसर. सर अगर नंबर इससे कम है, अपना 10 से कम, मतलब 0 से 9 के रेंज में है, तो ये जो अपना सेकंड वाला 4 बिट एडर है वो चलेगा ही नहीं ना फिर? नहीं चलेगा तो सही ना. वो ऐड क्या करेगा? आंसर प्लस 0 0 0 0, क्योंकि ये आउटपुट तो आएगा ना यहाँ पे 0. अच्छा, तो कैरी 0 हो जाएगा. हाँ, तो 0 आएगा. आंसर तो हमें वही चाहिए, क्योंकि 9 से देखो 9 से कम है ना, तो आंसर क्या है? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सेकंड ये चलेगा, ये 4 बिट एडर चलेगा, लेकिन एडिशन 0 का ही करेगा. एंड इफ यू ऐड 4 plus 0 you will get 0 4. If you add 5 plus 0 you will get 5 only. If you add 6 plus 0 you will get 6 only. If you add 7 plus 0 you will get 7 only. Right? Similarly, if you add 9 plus 0 you will get 9 only. सर तो यहाँ पे 10 plus 12 करना है तो वो होगा? करके देखो, होगा ही ना. होगा, सब होगा. एडिशन तो सबका होगा. सर ये देख के समझा कि अगर 10 plus 12 कर दिया तो वो कैरी लास्ट में आ जाएगा, फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है. 22 आ गया तो वो 22 में 1 1 0 ऐड करेगा, एक कैरी आ जाएगा और फिर बचा हुआ आंसर हो जाएगा. तो 2 2 आ जाएगा. करोगे तो आएगा, आंसर आएगा. हाँ सर, sorry to interrupt, but student is waiting in lobby because of network issue. ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से जा रहे तो ठीक है. ये मैं इसलिए लॉक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन मीटिंग छोड़ के जा रहा है और कौन आ रहा है. सो आई एम जस्ट ट्रैकिंग दिस नंबर. Thank you, sir. सर वो 11 नंबर का मैसेज आया हुआ है, उसका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है. हाँ, मैंने अनलॉक किया है. अनलॉक किया है इसीलिए, क्योंकि जो भी मीटिंग छोड़ेगा नंबर चेंज होगा या कुछ भी तो मुझे पता चलेगा इसलिए. सर बीसीडी में 10 और 12 तो है ही नहीं, तो हम ऐड क्या करेंगे? है ना, क्यों नहीं है? 365 भी तो है. ये देखो 365 बीसीडी में है कि नहीं है? ये रहा, देखो. है तो सही, ये रहा. स्लाइड चेंज हुई भी. सर वो तो फिर बहुत लंबा जाएगा ना, बहुत क्योंकि लंबा उसमें 2 और 2 4 हो जाएगी बाद में 10 और 12 में. हाँ, जाएगा ज्यादा. कंप्यूटर को 4+5 करने के लिए थोड़ी बनाया भाई. देखो अभी ये आपको इतना बड़ा फोटो पे दिख रहा है ना, ये आईसी का एक छोटा सा 2 लेग भी ये काम कर देता है. इवन 50 से ज्यादा फंक्शनलिटी एक आईसी करके देती है आपको. काफी मिनिएचर फॉर्म में होता है ये, मतलब ऐसा नहीं इतना बड़ी ये लैपटॉप स्क्रीन में आप इतने बड़े गेट्स देख रहे हो, इतना बड़ा एडिशन है. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. जस्ट इमेजिन द फंक्शनलिटी ऑफ आवर लैपटॉप. यू नो हाउ, मतलब दिस इज नथिंग बट द डिजिटल रेवोल्यूशन. वैसे ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा होता नहीं है वैसे. सो आप लोग को ऐसा लगता है ना कि ये जो साइज रिडक्शन लाइक मैकबुक एयर है, एसस, मतलब नॉट एसस बट डेल है, उसके जो थिन लैपटॉप आ रहे हैं, और इवन देयर फंक्शनलिटी इज मोर हायर. सो रिड्यूसिंग द साइज
is a great task. It is not just like ये बोलो चलो screen छोटी कर दो, thickness कम कर दो, ये ऐसा कर दो. Because when you reduce the size, you need to reduce the number of components. You need to reduce a lot of other stuff. You need to reduce the battery size even with a greater capacity. And these are the tasks people, challenge it day by day. That is this is a nanotechnology. It's an application of physics only, right? Nano मतलब आप minus की range में काम करते, which you cannot even see using your naked eye. You need a bigger microscope to see all this stuff. सर Yes. अगर 365 प्लस कुछ भी किया तो ये सर नहीं 365 नहीं चलेगा ये, क्योंकि उसके लिए ना नहीं हमारे पास 4 बिट एडर नहीं चलेगा. उसके लिए 3 4 बिट पैरेलल लगाने पड़ेंगे. जैसे यहाँ पे है ना, ये 4 बिट एडर है, राइट? ऐसे और हाँ. 2 लगाने पड़ेंगे और फिर उसको सर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना इसमें तो आप सिर्फ मैक्सिमम कितनी बिट जा सकते हो, 8 बिट जा सकते हो ना. वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा जरूर, बट इट इज लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड. एंड जितना भी हम रेस्ट्रिक्ट रखे उतना ही ठीक है. मतलब वी जस्ट स्टिक टू दिस 4 बिट. सर उस वाले में ये हो जाएगा, लेकिन सर मैं समझ गया आप क्या बता रहे हैं. सर उस वाले में सर जैसे ये 4 बिट पैरेलल लैडर 2 है इसमें, है ना, 1 हाँ, 2 हाँ, और सर वैसे ही उसमें फिर 3 लगेंगे. तो सर हाँ, वो भी ये करेगा फंक्शन, हाँ, बाकी सब 0 होंगे फिर उसमें, है ना? हाँ. मतलब एक काम करेगा, बाकी दोनों फिर 0 ही रहेंगे पूरे, अगर नहीं डाला तो. अगर नहीं है तो राइट, इवन आई लेकिन उसके लिए कुछ और होगा. मतलब मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है. मतलब देयर आर आल्सो, ये तो काफी बेसिक सर्किट्स है, राइट? एंड इट इज लाइक काइंड ऑफ ओल्ड एज, यू कैन कॉल इट. अभी तो काफी हाई फाई, और मतलब दीज आर लाइक, अभी मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ये. दीज आर ऑल द बेसिक सर्किट जस्ट टू गिव यू द आइडिया. अगर सीधा हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में जाएंगे तो विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? क्यों? अभी क्या है कि ये जस्ट लाइक एडिशन, सिंपल एडिशन है. फिर आपको मतलब बड़े एडिशन देखोगे, मतलब 10 डिजिट के एडिशन देखोगे, फिर आप ज्यादा ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सो अभी ये इसलिए करें क्योंकि आपको आइडिया है कि अच्छा ऐसे चीज को एडिट किया जाता है, मतलब ऐसी चीजें फंक्शनल करती है. वैसे तो बहुत सी हाइब्रिड सर्किट्स आती है जो ये सारी फंक्शनलिटी वैसे ही करके देती है. आप छोटा सा एक आईसी लगा दो, सारे फंक्शन कर दे. आपका कैलकुलेटर देखो ना, वो सारी चीज कर देता है. वो एडिशन भी कर देता है, सब्ट्रैक्शन भी कर देता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर देता है, सारी चीज कर देता है ना. हाँ. वो कितने नंबर करते, बड़े बड़े नंबर करके देता है. फिर उसके आगे अगर नहीं हुआ तो सिंटैक्स एरर देता है. हाँ. Alright, so now the next circuit, these are called sequential circuit, right? और कंपैरेटर सर्किट्स आते हैं कि अब हमने एडर, सब्ट्रैक्टर, बीसीडी एडर देख लिया है. अब कोड कन्वर्टर सर्किट्स भी आएगी कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ये बाइनरी नंबर है, वो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, कि भाई ये बाइनरी नंबर है, मुझे ऐसी सर्किट बनानी है कि वो अपने आप नंबर को बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कर दे. तो मुझे वही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भैया बाइनरी और बीसीडी कोडेड में फर्क क्या है. मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे जो भी नंबर बाइनरी में आए वो अपने आप बीसीडी में कन्वर्ट हो जाए. सो यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक. सर 0 से 9 के ऊपर तो फिर एक्सओर लगा देंगे ना एक. नहीं, वो तो और थोड़ा और आएगा डिटेल में, अभी नहीं हो पाएगा, अभी वो बाद में. अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. नेक्स्ट इजी सर्किट इज कंपैरेटर सर्किट. कंपैरेटर सर्किट मतलब 2 बिट आती है, 1 बिट भी आती है, 4 बिट भी आती है, 8 बिट भी आती है. हम लोग सिर्फ 2 बिट तक ही स्टिक ही रहेंगे या फिर देखेंगे, क्योंकि दिस इज लाइक ये जो पूरा यूनिट है ना जो मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो लास्ट टाइम से ही पढ़ाया था, उसके लिए सिर्फ मेरे को 3 लेक्चर मिले. आई जस्ट हैव 3 आवर्स टू डू. मतलब सिर्फ बेसिक आइडिया देना है, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट टू गो इन मोर डिटेल एंड डिटेल एंड डिटेल. बट जहां तक हम जितना डिटेल में जा सके जाएंगे. तो कंपैरेटर की बात कर रहे हैं. इसमें भी 4 बिट एडिशन के बाद काफी सारे एडिशन कोड भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है. अगर आपको मैं सिलेबस में तो सिर्फ कोड लिखा है, लेकिन कोड को उसमें मेंशन भी नहीं किया कौन कौन से कोड पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने. बट आई एम ट्राइंग कि भाई बेसिक जो 3-4 कोड है वो सारे कवर कर ले हम लोग. अदरवाइज दिस इज लाइक
1600 पेज की बुक है इसमें, तो इतने तो जितना पढ़ो उतना कम है। कंपैरेटर भी आप 8 बिट तक भी जा सकते हो, 4 बिट तक जा सकते हो, बड़े बड़े ऊपर आप जा सकते हो। द मोर यू वांट यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट लर्न अबाउट इट, बट विल जस्ट स्टिक टू द बेसिक आइडिया। बेसिक में भी हम थोड़ा डिटेल में तो जा ही रहे हैं। सो 2 बिट कंपैरेटर मतलब कंपैरेटर, नेम इटसेल्फ टेल अस व्हाट डज इट मीन। कंपेयर करते हैं नंबर को, वर्ड को, ठीक है। 2 बिट, 1 bit, 4 bit, 8 bit. So a digital comparator is a combinational circuit designed to compare two n-bit binary words. Comparator has 3 output. एक हमारा A है, ये अब schematic diagram देखो, एक B नंबर है, ये जब कंपैरेटर में जाते हैं तो वो 3 आउटपुट दे सकते हैं। एक तो A greater than B, एक less than B and A is equal to B, राइट। अब इसके लिए हम लोग सर्किट बनाएंगे कि वो अपने आप करे। आर एम इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वही चीज है कि हम लोग जो भी फंक्शनैलिटी कराते हैं वो खुद करता है ना, हम थोड़ी ना देख के बताएंगे, राइट। अब ये सिंगल बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई कंपैरेटर ले लिया, ए 1 बिट है, ए और बी सिंगल बिट, तो वो 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो ए इज लेस देन बी, या तो A is equal to E for equal, L for less, G for greater, or A is greater than B. So this is the truth table. A and B are, these are the two number 0 0, 4 possible combination हो सकते हैं, 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा या 1 1 होगा. In these 4 cases we might have 3 possibility, या तो A greater than B होगा, या तो A equal to B होगा, या तो A less than B होगा, right? 0 और 0 ये तो इक्वल हो गए ना, तो ये 1 हो गया। 0 1 that is A greater than 1, 1 0 that is A less than B, and 1 1 A equal to B। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, समझ में आया? A equal to B X नॉर हो गया। एग्जैक्टली, A equal A B greater X नॉर हो गया, A greater than B हो गया आपका A B बार, और A less than B हो गया आपका A बार B। A बार B। समझ में आया सबको? ये कैसे बोला? गौरव ने बोला, मैंने भी साथ में बोला। हेलो, यस सर। ये समझ में आया कैसे इक्वेशन बोला? बिना के मैप पे भी आप बोल सकते हो, जिसको मतलब एक्सपर्टी अभी थोड़ी आ गई है, ट्रूथ टेबल देख के ही आप के मैप के बिना भी ये बोल सकते हो। यू डोंट नीड टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे स्क्वायर आप मर्ज कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे करोगे ठीक है, बट मतलब देख के बता सकते हो, इसके लिए कोई के मैप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये इक्वेशन कैसे बोला, या फिर बताऊं? Okay, so this is the circuit, 2 number। हमारा जो A लेस देन B है वो A बार B है, तो ये A बार और B का एंड कर दिया। फिर ये हमारा A इक्वल टू B है, वो एक्चुअली आप सीधा भी वो गेट यूज करोगे तो चलेगा, बट इन लोग ने क्या कि एक सिक्वेंशियल सर्किट ली है, इसलिए उन लोग ने एंड के आगे ये लगा के किया है, और ये A B बार है, तो मतलब A और B बार। हाँ सर, सेम इनपुट्स डालेंगे आएगा एक्स नॉर में। हाँ ये भी सही है। अच्छा, इनपुट्स तो सेम ही डल गए ना दोनों में? हाँ, नहीं मैं अलग सोच रहा था। अच्छा, तुम बट वही डायरेक्ट बात लगाने हुआ। वाले थे। हाँ उससे भी हो जाता, बट ये बेटर हो गया। आप कोई भी इनपुट डाल के देखो, आंसर सही मिलेगा। आप लोग 0 0 कॉम्बिनेशन डालो, 1 1 कॉम्बिनेशन डालो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर ओनली इन दिस। यू कैन वेरीफाई इट, तो उसके भाई ये सही है कि गलत कैसे पता चलेगा? तो डालो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 डालो, यू विल गेट द आंसर। ऑटोमेटिकली दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स विल आइडेंटिफाई। अब आप समझ रहे हो, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट से स्टार्ट किए थे, राइट? ट्रूथ टेबल से स्टार्ट किया था।
अब आपको फंक्शनैलिटीज की समझ में आ रही कि कैसे गेट यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। पहले तो आप तो बस टिक करते थे ट्रूथ टेबल के, अच्छा 0 0 0 है 0 1 1 इसका क्या मतलब है, बट दिस कंबाइनिंग गेट्स कैन डू एन नंबर ऑफ फंक्शन यू कैन नॉट इवन इमेजिन। पता है आपको ये कंपैरेटर कहाँ पे यूज हो सकता है? कंपेयर करने। एग्जैक्टली अपना पासवर्ड जो मैच करते हैं वहां पे भी यूज होते हैं। सर लाइट Exactly. डिटेक्टर में भी यूज कर सकते हो? हाँ अच्छा, वो LR प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसमें भी आता होगा? आई डोंट नो एग्जैक्टली उसमें क्या यूज होता है अभी, मतलब मैं सर तो उसमें ऐसे ये कि अगर डिटेक्ट हुआ तो ये, डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये, और अगर हाँ ये कलर डिटेक्ट हुआ तो ये, ऐसा ये हुआ फिर। हाँ मतलब थिंग विच आई एम नॉट श्योर, माय आई माइट से यस बट आई एम नॉट 100% श्योर, आई नीड टू चेक। ऑलराइट सो आई की जस्ट कीप इट दिस, यहाँ पे तक। ओ अटेंडेंस रह गया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो ना करो, या फिर मुझे एब्सेंट नंबर बोलो अभी फटाफट। हाँ सर। सर पीयूष पूरे लेक्चर से उसका मैसेज आया, उसे रिज्वाइन होने के लिए बोलूं मैं वापस? नहीं चलेगा, फटाफट 1 ओके। 2 3 4 5 6 में कोई 6 एब्सेंट, 7, 11 11। सर 11 11 का मैसेज आया था। हाँ वो है देवयानी है, मुझे मैंने देखा। 15, 16, हम्म 22, हम्म 24, हम्म 27, हम्म 28, हम्म 32, 6, 6 36, 36, ओके 41, 42, हम्म 43, हम्म 44 सर पीयूष, फिर 45, हम्म फिर 57, 58, 62, 63, 66, 68 का लेफ्ट है, फिर 70, 71, 76, 78, अरे मैं ये सॉरी हो गया सर, बाकी सब प्रेजेंट है। इन लोगों को कल लैब में भी मैंने बोला था कि एब्सेंट मत रहना, फिर भी लोग एब्सेंट रह रहे। मैंने बोला था ये सारी चीजें, इसके बाद मल्टीप्लेक्सर और बहुत बड़ी बड़ी सर्किट आने लगेगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, उन लोग की प्रॉब्लम, हमारे क्या। चलो एंड कर रहा हूँ मीटिंग, विल मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एंड इन लैब आवर्स। बाय, टेक केयर। यस सर।